جی، ماحولیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اس کے حوالے سے ہم گائے بگائے آگاہی دیتے ہیں، لیکن ماحولیاتی تبدیلی سے تھرڈ ورلڈ جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم ہمیشہ کریٹ ہوتا ہے، اور دنیا میں اس مسئلے کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہاں پر ایک یوتھ سمٹ ہو رہا ہے، جس میں یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات یہاں پر شریک ہے۔ بنیادی طور پر اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ یوتھ کی اس تمام تر صورتحال میں ماحولیاتی تبدیلی ہو، کلائمیٹ چینج ہو، گلوبل وارمنگ میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پر ایک کانفرنس انعقاد کی گئی۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں۔ اچھا میڈم، آپ یہ بتائیے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک عالمی مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہو کہ ایسے میں جو پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، بٹ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں دے آر بینگ افیکٹڈ بائی اٹ، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہاں پہ ابھی فی الحال کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن پاکستان کی انڈسٹریز بھی کر رہی ہیں، وہ 4th نمبر پہ آ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری یوتھ ہے ان میں تو تھوڑی بہت اویئرنیس آ گئی ہے، بٹ وہ کلائمیٹ ایکشن کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ یوتھ سمٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری جتنی بھی یوتھ اکٹھی ہوئی ہے، ہمارے جتنے پالیسی میکرز اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یوتھ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم پالیسیز بنا سکتے ہیں اور انہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم انوائرمنٹ کے اس تمام تر صورتحال میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ویل آئی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہی کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اور جتنی بھی یوتھ ہے وہ ایک مائل سٹون ہے ہماری کنٹری کے لیے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس اگر وہ کولیب کر لیں تو ہم لوگ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جو ہماری آگے والی فیوچر جنریشنس کو بھی ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا۔ ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں کہوں تو میں نے بہت زیادہ انیشیٹیوز میں حصہ لیا ہوا ہے۔ گرین یوتھ موومنٹ کلب میں میں ایز اے لیڈ کام کر رہی ہوں، تو ہمارا فرسٹ فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کو یا جہاں تک ہماری رسائی ہے، جہاں تک ہماری ریچ ہے، ہم وہاں تک اتنا کام کر سکیں کہ جو ہماری آگے والی جنریشن آئے گی وہ ہمیں ایز اے رول ماڈل لے، اور اگر ہم لوگ ایسے انیشیٹیوز لیں گے جو ہماری انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہماری ارتھ کو پروٹیکٹ کریں گے، تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی ہمیں دیکھ کے ہماری انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خواتین کے اوپر بھی بڑے اثرات ہیں۔ آپ راولپنڈی کے شہری ہو، آپ کیا سمجھتی ہو راولپنڈی کے اندر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے لوکلی کیا اثرات ہیں، پانی کے مسائل اور دیگر کیا چیزیں آپ فیس کرتے ہو؟ As you all know, women go through their menstrual cycle every month, جس کی وجہ سے اگر پانی نہ ہو ڈیفینیٹلی دے کین ناٹ کلین دیئر سیلفس، اینڈ راولپنڈی میں اس وقت بہت زیادہ پانی کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر کھنہ پل کی بات کریں تو پہلے گراؤنڈ واٹر راولپنڈی میں بہت زیادہ تھا، بٹ جیسے جیسے سوسائٹیز بڑھ رہی ہیں، اسلام آباد میں آبادی آ رہی ہے، راولپنڈی میں آبادی آ رہی ہے، ٹوئن سٹیز میں، ویسے پانی کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ گراؤنڈ واٹر جو ریسورسز ہیں ہمارا جو واٹر ٹیبل ہے وہ دن بہ دن نیچے جاتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو ڈیفینیٹلی مسئلہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کیونکہ انہوں نے گھریلو کام بھی کرنے ہوتے ہیں، گھر کے جتنے بھی کام ہیں انہوں نے ہی کرنے ہیں، تو پانی نہیں ہوگا تو مسئلے تو بیسیکلی انہیں ہی فیس کرنے پڑیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہو کہ جو دیہی علاقوں میں جو خواتین ہیں وہ اس میں ان کا کیسا رول ادا ہو سکتا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے آپ کیا پیغام دو گے؟ ویل اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی پیغام دوں گی کہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، ان کے پاس پلیٹ فارمز ہیں۔ ابھی جس طرح ہم لوگ یوتھ سمٹ جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیکن اسٹوڈنٹس کو وہ گریب نہیں کرنی آتی ہیں، تو میں یہی پیغام دوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو آن دا ویری ایج آ کے اپنا جو پڑھ رہے ہیں یا جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں، ایز اے وومن میں یہ کہوں گی کہ اگر ایک عورت ڈگری لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈگری لے اور بس بعد میں اس کو ختم کر دے۔ اگر اس نے ڈگری لیا تو اس کو وہ پریکٹس میں بھی لانی چاہیے، لیکن وجوہات آ جاتی ہیں کچھ زندگی میں، تو اگر وہ نہیں لا رہی تو ایٹ لیسٹ اسے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل بن جائیں دنیا کے لیے، اور بچوں کے لیے تو آف کورس ان کی ماں ہی رول ماڈل ہوگی۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور جتنی بھی اپرچونیٹیز آتی ہیں ان کو گریب کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کانفرنس ہے آج ہو رہی ہے اس سے سوسائٹی کے لیے کیا فائدہ ہوں گے؟ یوتھ کی انگیجمنٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر پی سی ایف کی بات کریں 2 منتھ فیلوشپ ہو گئے، اس میں بیسک چیزیں سکھائی گئی کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، تو وہ بیسک کنٹینٹس سمجھائے گا۔ اس کے بعد یہ سبمٹ ہو گیا، اس میں ڈفرینٹ
प्रोविंसेस के यूथ को इंगेज किया और डाइवर्स किस्म के लोगों को इंगेज किया और मतलब आइडिया एक्सचेंज हो गया एक दूसरों के दरमियान। यूथ पैनलिस्ट हो गए, एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट था, उन लोगों ने अपने आइडियाज़ को शेयर किया और उन लोगों से थ्रू हमें बहुत सीखने को कुछ मिला। और सर किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है, एक पिलर कहता हूँ, जो कम्युनिटी को इंगेज करता है, क्योंकि अगर हम किसी कम्युनिटी को हम इंगेज करते हैं तो वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई। अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट लेवल पे बनाई जाती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रही है, वो ये उनके ऑब्जेक्टिव या माइलस्टोन है वो अचीव नहीं कर पा सकते हैं। दैट्स वाई क्योंकि वो उन लोगों के पास नहीं जाते हैं जो रियली अफेक्टेड हैं। जैसे अगर इस्लामाबाद में बैठ के कोई बंदा अगर पॉलिसीज़ बना रहा होता है तो जीबी में, क्योंकि अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो टोपोग्राफी बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद की जो पॉलिसी है वो जीबी में या दूसरे प्रोविंसेस में बिल्कुल ही नहीं चल सकती। तो इसलिए हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि यूथ को इन्वॉल्व करें, यूथ एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व करें, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनमें मिल बैठ के कोलैबोरेशन काम करें, यूथ को इंगेज करें। हमारे जो जीबी के स्टूडेंट्स हो उनको इंटरनेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे तो बात करने का मौका नहीं। मैं पीसीएफ का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इन लोगों ने हमें मौका दिया, यहाँ एज अ पैनलिस्ट बुलाया और अपने जो आइडियाज़ थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमें शेयर करने के लिए मौका दिया। तो यूथ का किसी भी माशरे में एक पिलर होता है, जो अपना रोल मॉडल शो कर सकें और जो भी इश्यूज़ और इश्यूज़ को आप कर सकते। आज की इस यूथ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी पर्पस क्या है, इसके हवाले से हमारे साथ कुछ मज़ीद स्टूडेंट मौजूद हैं, हमसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये जो कॉन्फ्रेंस आप करवा रहे हैं इसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मैंने आप पहली दफ़ा देखा है, तो आप क्या समझती है ख़वातीन का क्या रोल हो सकता है क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीज़ों में? बेसिकली जो हम लड़कियां होती हैं डेफ़िनेटली हमारा बहुत बड़ा इस चीज़ के अंदर रोल आता है, क्योंकि हम ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट भी और हमने आगे अपनी नेशन भी आगे चलानी है, लाइक हमारी फैमिलीज़ को भी हमने आगे डेवलप करना है। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है कि लड़कियां भी इस चीज़ के अंदर आ रही हैं। दूसरा ये कि घर के ज़्यादातर अखराजात जो चीज़ें हैं वो लड़कियां घर के अपना संभालती हैं, जैसे पानी हो गया और ये हमारे रिसोर्सेज हैं, खाना वगैरह। तो इस चीज़ के बारे में कि वो अच्छा एक तौर तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जाए और इन सब चीज़ों के लिए, तो डेफ़िनेटली लड़कियों का काफ़ी रोल इस चीज़ में, ख़वातीन का आता है। वाले लोग तो बहुत मतलब इस मामले में जो है पीछे है, लेकिन हमें चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी ये अपॉर्चुनिटी दे कि वो आगे बढ़े, जितना हो सके वो इन चीज़ों में जो है हाँ पार्टिसिपेट करें। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वालों का ये कंसेप्ट है ना कि लड़कियां जो है वो बहुत कम आगे बढ़ते हैं, अक्सर लड़कों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है, इतने जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो सकता है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कोई काम करने वाला है नहीं, सबका कंसेप्ट यही है कि लड़कियों को जो है जितना हो सके अंदर रहना चाहिए, जितना हो सके। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है, बहुत गलत है। जितना हो सके लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को भी, और एजुकेशन अवेयरनेस देना चाहिए। और अब देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से काफ़ी लड़कियां इस चीज़ की तरफ आ रही हैं यूनिवर्सिटी से, लाइक दूर दूर से मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं जो हॉस्टलाइज्ड हैं और वो यहाँ पर स्पेशल पढ़ने के लिए आ रही हैं। तो इट्स गुड के साथ साथ हम लड़कियों के लिए भी और ये इस चीज़ के लिए भी काम हो रहा है, तो इट्स गुड। स्टूडेंट आप क्या समझती हो, ख़वातीन को ये जो मसले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसमें क्या रोल हो सकता है ख़वातीन के हवाले से? आप कैसे इनको अवेयरनेस दोगी, क्या शऊर हम देकर ख़वातीन जो इफ़ेक्ट हो रही है उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? मेरे ख़्याल में तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ख़वातीन वगैरह को देना, कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को ग्रेजुएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस दें। जैसे हम ऊपर के लेवल पे तो बात करते हैं कि वो हम ऊपर इन लोगों को अवेयरनेस दें, लेकिन हम देहात वगैरह में नहीं जाते कि वहाँ पे लोगों को, छोटे बच्चों को, या वो स्कूल नहीं जाते और वहाँ की ख़वातीन वगैरह को अवेयरनेस दें कि वो उन्हें स्कूल भेजें और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस दें। जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ बहुत सारा धुआँ वगैरह रिलीज़ होता है उनसे, तो हमें वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स वगैरह इंस्टॉल करवाने चाहिए, ताकि जो वहाँ से जो पानी निकलता है वो साथ समंदर या दरियाओं में जहाँ पे भी जा रहा है उससे हमारा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा तबाह हो रही है। तो हमें उसके लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए उन इमिशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे इवेंट देखे हैं जो कोई बहुत बड़े फ्लड आए हो या किसी डिज़ास्टर्स के कोई इवेंट आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हो, तो क्या तजुर्बा आपने वहाँ देखा है? जी मैंने देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा डेथ रेट भी हो गए थे, बहुत सारे ये क्रॉप वगैरह, इतना सब कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए थे, जानी भी और माली भी। तो इस वजह से मैंने एक दफ़ा देखा है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्लड्स हुए थे, क्लाइमेट चेंज भी अब गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
अच्छा, बतौर स्टूडेंट आप क्या समझती है कि जो हमारे बच्चे हैं, ख़ासकर ख़वातीन हैं, उनको हम कैसे मज़ीद मोटिवेट कर सकते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन इश्यूज़ के ऊपर मज़ीद बात करें, खुलकर सामने आएं? पहले ना इस चीज़ पे इतना कोई गौर नहीं करता था, लाइक क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे ना, लेकिन अब जैसे अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा, जैसे गर्मी सर्दी मौसम में चेंज जैसे जैसे आ रहा है, तो ये सब के लिए है और सब अब इस चीज़ पे नोटिस भी कर रहे हैं। और इसलिए हमारी अपनी हुकूमत को भी, हमारी अपनी हुकूमत भी अब इस चीज़ पे गौर व फिक्र कर रही है। कहना चाहूँगी कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत इससे तबाह हो रहा है, बहुत अफेक्ट पर, जैसे चिड़िया की जो है वो तादाद बहुत कम हो गई है, अब वो नज़र ही नहीं आती क्योंकि हमारा केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। इसके लिए हमें क्रॉप रोटेशन जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे बायोलॉजिकल तरीक़ों पे जाना चाहिए ताकि हमारी क्रॉप भी प्रिजर्व हो और हमारा बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व हो, हमारा इकोसिस्टम भी तबाह ना हो। ठीक है, थैंक यू। क्लाइमेट चेंज के ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये पूरी सोसाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा असरात है। ख़वातीन हमारी सोसाइटी के एक ऐसे वल्नरेबल कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। हम बतौर सोसाइटी के मेंबर के ख़वातीन के इन मसाइल के ऊपर कभी इसको हाईलाइट नहीं करते हैं, और मोस्टली अगर हम डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में या गल्फ़ इवेंट जिन इलाकों में होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर ख़वातीन होती हैं, क्योंकि वो घरेलू तमाम मामला देखते होते हैं, वो हमेशा मेंटल ट्रॉमा होता है, उनके बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। सोसाइटी के अंदर इन तमाम जो मसाइल हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन तमाम मसलों के हवाले से हम जब तक प्रॉपर अवेयरनेस ट्रेनिंग और वो बैकवर्ड एरियाज़ देहातों तक जाकर हम इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं करवाएंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, एक नेक्स्ट मौसम में आपके साथ एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।